So to upload any practical, just click on classwork. Then here you will find out upload practical assignment and work done. So just click here. You will find out the different steps I have given. Again, it's not necessary to zip your file or like make a RAR of your file. You can upload the two different attachment also. So here I am able to see, like, from your class, the 11 students have uploaded the assignment. So when I click here, you can see that some students have uploaded the RAR file, some students have not uploaded any attachment. So just check whenever you are submitting, you have added attachment or not. So here I am not able to find out the attachment for some of the students. Then some students have added the two attachments. So again, it is a very easy task. If you can do, it's again and easy for you and for me also. No need always to make a RAR file. So if you see here, for every assignment, what thing you have to upload, I just click on one of the student who have uploaded some two things. So here first is a PDF where he have uploaded, he or she has uploaded the manual, written manual. So you can write down the manual. If you have a college pages available with you, you can write down in that, or on A4 size pages, or if you have any book with you, register with you, you can write down the manuals in that itself. But remember that in the first page you have to add your roll number, experiment number, title of experiment, your name, and this WCDVT, this table where I am going to add the marks after you will join the college. Right now I will give the marks online. So this is the first attachment you have to add. Second attachment is a Word file where you can take a screenshot. Now instead of screenshot, how to copy and paste your written command, that I will show you today, which will be again very easy for you. So in a Word file, whatever the commands you will perform for that practical, just add that here and upload these two attachment for group A assignment number 1. So whoever the student have not done this, complete it till tomorrow. So just you have to upload the manual and only 4 commands in your first practical. That commands are again related to your database. Again, many students have no laptop or machine with them. On mobile, it is not possible to do the database related operation, whatever the mobile app I have suggested. Only the table creation, means from second practical you can do. So the student who don't have the laptop or machine, how they are going to upload the practical done? Very simple. You just open the Word or Notepad and write down here MySQL prompt and the 4 commands that I have told you to do, like create database, and suppose name of database you have created. Then second command we have to like we have seen is show databases. Then third command is use and name of database. Suppose the database created here is db1, so I will use db1. And fourth command we have seen is the drop database and name of database, that is db1. So these are only the 4 commands that we have seen. So the student who have a mobile app, just open your any like notepad or any note in your mobile and write down these 4 commands and just save this file, and you can upload this file along with your manual. Now the other student who have a machine and laptop, so how to save the your completed work? So I will show you, very easy it is. Suppose now I am starting here MySQL prompt, given the password as root here. So here MySQL prompt is started. I have given the first command, that is show databases. Then second command is, suppose I have used here create database, and suppose any name of database I have used.
Okay, it is already available. So second database which I have created. Then third command is again, suppose show databases, where that database name is added. Then next is use and name of database. Likewise, suppose I have done all this command. Now I want to copy all the queries which I have written in this MySQL prompt. So from your mouse, right click. When you right click, you will find out the option mark or select all. When you want to copy all the commands, you have to just use a select all. When you want to copy a particular one or two command, you have to use a mask. So suppose I have used a select all. So after that, you will see all the command or queries, whatever I have written is selected. After that, you just have to press enter. That's it. I have just pressed enter now. After enter, you just open a word and use a control V. So you will see whatever the command I have done on my MySQL, it all has been put it here. So whatever you don't want, you just remove this. Suppose I don't want this and I want, it should start with the MySQL show databases. Then if you, while doing your program, you have lots of time, you have done some mistake. So you can just remove that error from Word file. And likewise, whatever you want, you just use this. I have just selected this and remove the space. So we'll find out here, you will find all the commands. So whatever the command you want to upload, just make a bold of that command. Like what different command you have done. Okay, so control B से उसको मैंने क्या किया, bold कर दिया. And you can also add a comment now, because your rubrics W C D V T, in that rubrics your documentation have the 4 marks. So whatever documentation you will upload, see that it should be very proper with comment. Suppose I have write a comment like this. This command is used to show all databases. So likewise, this is the comment. If you want to just give the different color for comment, you can do that. Now suppose second comment I am adding here, like this command is used to create new database. Used to create new database. Likewise, you can also add a comment. It will be again very useful for you whenever you go up to 5 or 6 practical, and when you check back first or second practical, you have a proper Word file with you with all the commands and the comment you have written. So it will be very easy for remember which command is used for which purpose. So just save this Word file and upload it. So instead of using a screenshot, you can use this strategy also. So I hope you understood, everyone have understood how to save the command and upload it. I will just repeat this. On your MySQL prompt, right click from your mouse, click on select all. When you want to select all the things, then just press enter, not control C, just press enter from your keyboard. So all the things will be copied. And when you open the Word or Notepad and just press the control V, so whatever you have put it in your MySQL command line, all the commands will be copied and pasted here. So it is a very easy trick. So this is all about the first practical. Again, if you have any problem, you can ask anytime. So this is, now we'll start with our second practical. So you will find out all the practical PPTs here also, and I will going to also upload on a Google Classroom on my blog in practical subject. Click on a DBMSL lab and click on notes and presentation here. So in that you will find out the first practical here. After that, today we'll start with our actual main practical, that is a second practical. So that second practical is again MySQL introduction. This is an outline given in your syllabus where we have to design and develop the SQL DDL statement
which demonstrate the use of SQL objects such as table, view, index, sequence, synonym. So in this practical, we are going to study the 5 different objects. How to create this 5 object in your MySQL, and what are the different syntax we have to perform here. So we will start here for the practical here, like first one is a table. So from this object, you will see the first object that we are going to study is a table. Now in table, I have given one example here where you will find out that the table is a combination of rows and columns. So in table, you will create a column, you will give the name to the columns, and you will add a data row by row. So here in this table, I have created 3 columns like roll number, name, and address. And I have added 2 rows here. So table is a very simple, it is a combination of rows and columns. That's it. So first object we are going to create is a table. Now second is a view. Now view is a logical table. It is a physical object which stores data logically. मतलब व्यू जो होता है फिजिकली कोई स्पेस मेमोरी में नहीं लेता है. जब आप टेबल बनाते हो तो ये कुछ फिजिकली एक मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे ये पूरा डेटा वो स्टोर करता है. और व्यू मतलब आप उस टेबल पर खाली एक व्यू बनाते हो जो एक लॉजिकल होता है. इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल थिंग्स. लोकेश, आप आपका माइक प्लीज म्यूट कीजिए. लोकेश पिंचा, आपका माइक आप प्लीज म्यूट कीजिए. यू आर डिस्टर्बिंग मी. देन नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कि व्यू जो होता है, हमने एक छोटा व्यू बनाया है. देखो, अगर ये टेबल है, इस टेबल पे ये जो टेबल देखा था हमने इस टेबल पे, मुझे लग रहा है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को मुझे ये तीनों कॉलम्स नहीं दिखाने हैं. एग्जाम्पल, अगर ये डेटाबेस है आपके बैंक के रिलेटेड, तो बैंक के रिलेटेड डेटा जो है आपको लग रहा है कि आपके बैंक में जो अमाउंट है ये मुझे लोगों को नहीं दिखाना है या एम्प्लॉयज को नहीं दिखाना है, सिर्फ आपका नाम और एड्रेस दिखाना है. तो उस टेबल का आप व्यू बनाओगे और आपको जो डेटा खाली डिस्प्ले करना है लोगों को. हेलो लोकेश पिंचा, प्लीज. ओके. सो जो भी टेबल आपने बनाया है उस टेबल का जब कुछ पार्टी आपको यूजर को दिखाना है और कुछ सिक्योरिटी के लिए आपको हाइड करना है, तो उस टेबल के ऊपर आप व्यू बनाते हो. जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर और नेम 2 ही कॉलम दिखा है टेबल की, और 1/3 कॉलम जो था टेबल का वो हाइड कर दिया है हम लोगों ने. देन नेक्स्ट इज अ इंडेक्स ऑब्जेक्ट. आप लोगों को सबको पता है, आपके पास अगर कोई बुक रहेगा तो बुक में से अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप पेज बाय पेज तो सर्च नहीं करते हो. आप क्या चेक करते हो कि उस बुक का कोई इंडेक्स है. इंडेक्स में से आपको जो टॉपिक सर्च करना है आप चेक करोगे कि वो टॉपिक का नाम कहाँ है और कौन से पेज नंबर पे है. सो इंडेक्स का यूज क्या है? व्हेन यू वांट टू सर्च एनीथिंग very quickly or fastly, that time index is used. तो ऐसे ही एग्जाम्पल, आपने कोई बुक खरीदी 1000 पेज की और उसको इंडेक्स ही नहीं है, इंडेक्स फट गया है, और आपको अगर कोई चीज या कोई टर्म सर्च करनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्च इन दैट. लेकिन अगर वही इंडेक्स दिया है तो आप इंडेक्स से फटाफट अल्फाबेट वाइज चेक करोगे. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आप चेक करोगे जो टॉपिक है उसका पेज नंबर क्या है और आप फाइंड आउट करोगे. ऐसे ही जब आप टेबल क्रिएट करते हो डेटाबेस में और उसमें बहुत सारा डेटा है, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रोज यू हैव एडेड, और जब आपको पर्टिकुलर कोई रो या पर्टिकुलर कोई डेटा आपको सर्च करना है, तो वो सर्चिंग फास्ट होने के लिए डेटाबेस हर टेबल के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट करता है जिससे सर्चिंग ऑपरेशन फास्ट परफॉर्म होना चाहिए. सो इंडेक्स इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू परफॉर्म द सर्चिंग ऑपरेशन faster while you are searching some data or record in your table. The next concept we are going to see in this practical is sequence. If you are able to see here the sequence, that is for bill number.
For bill number, the number are coming in a sequence like 101, 102 and 103 likewise. So when you want in your table for a particular column, whenever you will add a new row, the value should come automatically in a sequence like a roll number. Your roll number is always coming in a sequential manner in your roll call list. So the sequence is when you want a data in the sequence for a particular column, तो आप उसको sequence बना सकते हो using auto increment. एक पर्टिकुलर क्वेरी है जिससे हम इसको बनाएंगे, जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. एंड लास्ट वन इज अ सिनोनिम. सिनोनिम मतलब जब आपको किसी को निकनेम देना है. एग्जाम्पल आप लोगों के काफी निकनेम रहेंगे, तो आपका एक नाम अलग, आपको घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट पे हो सकता है कुछ अलग नाम है, तो सिनोनिम मतलब अ डुप्लीकेट और अ निकनेम. तो ऐसे ही अगर आपने कोई टेबल बनाया है और उस टेबल का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, वेरी ह्यूज, एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम और एडिंग दैट नेम in your query is a tedious job. So you can create a synonym for that table which is a shorter in size and easy to remember. But the synonym of a table or any object, this facility is not available in MySQL, but it is possible with the Oracle. तो MySQL में synonym के लिए कोई query नहीं है, but if you are using a Oracle database, they are providing this facility where you can create a synonym for your table. So these are the 5 different objects that we are going to study in our second practical. We will start one by one. So before starting this, you should know like how your commands are divided. जितने भी commands होते हैं कोई भी database software के related, either it can be Oracle or MySQL or DB2, any database. So the commands are divided in a 4 types, where the commands can be like DDL, DML, DCL and TCL. DDL मतलब data definition language, DML is data manipulation language, then data control language and last is transaction control लैंग्वेज. तो कमांड्स को ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके लिए हमने ये यहाँ पे एक टेबल मैंने ऐड किया है. तो आपको समझ में आएगा कि हर एक के अंदर कौन से कमांड्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपको ओरल पूछी जाती है तो ओरल में मैक्सिमम टाइम वन क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड बाय आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, which command is coming under DDL, which command is coming under DML likewise. तो ये वाला डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है. तो ये जो प्रैक्टिकल है, सेकंड प्रैक्टिकल, इसमें हम खाली DDL रिलेटेड कमांड देखने वाले हैं. थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट योर DML प्रैक्टिकल. DCL और TCL ये आपको थ्योरी में है, लेकिन प्रैक्टिकल में सिलेबस में हमको नहीं है, बट दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. सर शायद आपको थ्योरी में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे. सो DDL जो है उसमें आप देखोगे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमिट एंड रीनेम. दिस मेनी कमांड्स वी आर गोइंग टू स्टडी. When we are going with our third and fourth practical, we are going to study this insert, update, delete, select, merge, etc. इसमें से कुछ हम देखने वाले, कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, बट ओवरऑल मैंने ये डायग्राम जो है w3school.in से लिया है, जिसमें ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया है. सो we will just concentrate on now DDL, that is data definition language. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है, इसमें जो कमांड्स यूज्ड होते हैं, दिस कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द टेबल और डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल और स्कीमा. तो जब भी आप कोई टेबल में डेटा इंसर्ट करते हो, उसके पहले आपको उसका एक स्कीमा बनाना पड़ता है. स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर. तो एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे, अभी मैं पहले एक्सेल पे जाऊंगी, फिर हम MySQL में देखेंगे. तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो मैंने डायरेक्टली सपोज यहाँ पे डाल दिया लाइक दिस. यहाँ पे कुछ मैंने डाल दिया लाइक दिस वन.
अभी मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ कॉलम्स के नाम नहीं दिए, तो आपको ये डेटा देख के समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट वैल्यू मतलब क्या है, सेकेंड वैल्यू मतलब क्या है, थर्ड वैल्यू मतलब क्या है. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बट इफ यू गोइंग टू ऐड अ कॉलम नेम, तो यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर, यहाँ पे डाल दिया सेकेंड इज नेम, थर्ड आई हैव एडेड जस्ट एड्रेस, यहाँ पे डाल दिया लाइक सपोज फीस, एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने लाइक ज्वाइनिंग डेट ऑफ कॉलेज एक्सेट्रा. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो रो है इसमें जो डेटा है इसका मीनिंग क्या है. तो इसका मतलब वेन एवर यू आर गोइंग टू ऐड एनी ऑफ रो, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब कितने कॉलम्स होंगे, हर कॉलम को नाम देंगे हम, और हर कॉलम में जो डेटा हम डालने वाले हैं उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है. जैसे रोल नंबर में जब डेटा जाएगा, इट शुड बी ऑफ अ इंटीजर. अगर मैंने इंटीजर के बजाय यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू डाल दिया, सो इट शुड गिव मी द एरर, इट शुड नॉट टेक दैट वैल्यू. सो यू शुड डिफाइन द data type also. Again you should able to define the size. अगर मैंने रोल नंबर में इतनी बड़ी वैल्यू डाल दी, is it applicable? No, it should not take that value, it should give the error. तो जब भी हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसका हमको बनाना है स्ट्रक्चर. ओके, सो दैट स्ट्रक्चर और स्कीमा बनाने के रिलेटेड जो कमांड है वो DDL के अंदर आती है. सो कमांड इज क्रिएट टेबल अल्टर. टेबल आपने बना दिया, बाद में आपको लग रहा है कि नया कोई कॉलम मुझे और चाहिए, लाइक ईमेल एड्रेस, उसका ब्लड ग्रुप चाहिए स्टूडेंट का. सो यू कैन ऐड न्यू कॉलम्स इन योर टेबल. और यू वांट कि कोई एक कॉलम है जो मुझे अभी नहीं चाहिए, उसको आप रिमूव कर सकते हो, किसी का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, किसी का कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स अल्टरेशन टू योर स्ट्रक्चर. ड्रॉप मतलब जो टेबल आपने क्रिएट किया था, आपको लग रहा है अभी वो टेबल नहीं चाहिए, काम हो गया, यू जस्ट गोइंग टू रिमूव दैट टेबल. दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉप टेबल. एंड नेक्स्ट इज अ ट्रंकेट. ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में पूछूंगी, इसके लिए आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए. द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट. ड्रॉप में टेबल के सब रोज रिमूव होते हैं, एज वेल एज उस टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाएगा, मतलब उसका टेबल का नाम आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद आपके डेटाबेस में. इन ट्रंकेट टेबल का नाम, टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, खाली उसके अंदर आपने जो डेटा स्टोर किया था वो डेटा खाली आपके इसमें से रिमूव हो जाएगा. सो ट्रंकेट इज जस्ट रिमूविंग ऑल डेटा. Drop means removing all data as well as removing the structure and table also from your database. This is the main difference. Comment, when you want to add some comment and rename, जब आपको लग रहा है table का नाम आपको rename करना है. So these are the different command जो मैंने थोड़ा बड़े इसमें आपको बताया कि जो हम देखने वाले. क्रिएट टेबल, शो टेबल्स, जैसे हमने शो डेटाबेस देखा था, तो शो टेबल्स में जितने भी टेबल आपने बनाए होंगे उन सबका लिस्ट आपको दिखाई देगा. देन डिस्क्राइब, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप एंड रीनेम. सो फर्स्ट कमांड इज योर क्रिएट टेबल. यहाँ पे हमने सिंटैक्स और एग्जांपल डाला है, मैं आपको साइड बाय साइड MySQL पे इसको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगी. सो हियर क्रिएट टेबल सिंटैक्स इज क्रिएट टेबल. आफ्टर दैट आपको उस टेबल को क्या नाम देना है. टेबल का नाम आप रिपीट नहीं कर सकते हो. एक बार अगर आपने टेबल का नाम कुछ एक ले लिया है स्टूडेंट, सेकेंड टेबल के लिए आपको दूसरा नाम देना पड़ेगा, तीसरे टेबल के लिए तीसरा. सो एक नाम एक बार आपने डिसाइड किया, यू कैन नॉट रिपीट दैट नेम. देन इन दैट कॉलम नेम, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट में आएगा जो आपको कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम का नाम, उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा और क्या पर्टिकुलर साइज होगी, तो उतने ही साइज में वो डेटा क्या किया जाएगा, हर रो के लिए स्टोर किया जाएगा. एग्जाम्पल हियर क्रिएट टेबल. टेबल का नाम लिया हमने स्टूड. इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए लाइक रोल नंबर, देन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ. रोल नंबर के लिए आप डेटा टाइप, यहाँ पे मैंने नंबर डाला है जो ओरेकल के लिए यूज होता है, हमारे लिए हम यूज करने वाले इंट. इंट मीन्स इंटीजर. यहाँ पे हमने साइज दे दिया 4, मतलब मैक्सिमम रोल नंबर की वैल्यू हो सकती है 9999, नॉट मोर देन दैट. नेम मतलब स्टूडेंट का नाम. नाम जो होता है हमेशा कैरेक्टर में होता है, तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे डेटाबेस के 2 टाइप आते हैं,
जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखा था। तो कैरेक्टर के लिए दो डेटा टाइप है, क्यार एंड वैर क्यार। क्यार मतलब जब साइज फिक्स है, वैर क्यार मतलब जो डेटा आने वाला है उस फील्ड के लिए उसकी साइज फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, दैट इज अ वैर क्यार। तो जहां पे भी आपका डेटा स्ट्रिंग में या कैरेक्टर के फॉर्म में, तो आइदर यू कैन यूज क्यार और यू कैन यूज अ वैर क्यार। यहाँ पे हमने साइज डाल दिया 20, मतलब मैक्सिमम नेम की जो साइज इंटर होगी वो होगी खाली 20 कैरेक्टर्स के लिए। देन नेक्स्ट इज अ DOB, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेटा टाइप मैंने यूज लिया है डेट। डेट के आगे हमने साइज नहीं दिए क्योंकि डेट के लिए जो साइज है ये MySQL ने फिक्स करके रखी हुई है, उतना ही साइज वो लेगा। ये वाला क्वेरी हम अभी परफॉर्म करके देखेंगे। हम MySQL में जा रहे हैं अभी। सो MySQL में इंटर किया। ओके, यहाँ पे जो आपने डेटाबेस बनाया है पहले हमेशा उस डेटाबेस में आपको इंटर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था भावना नाम का, सो वेरी फर्स्ट कमांड आफ्टर फर्स्ट टाइम यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, बट नेक्स्ट टाइम you don't need to create a database, you only have to use the database name, क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे टेबल इंडेक्स वो उस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सो हमने डाल दिया यहाँ पे यूज भावना, मतलब वो उस डेटाबेस में इंटर कर गया है। आफ्टर दैट हम कमांड देने वाले हैं क्रिएट टेबल। हम बता रहे कि हम क्या बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ टेबल। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम अगर हमने डाल दिया है लाइक स्टूडेंट और स्टूड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड। सपोज हमने स्टूड डाल दिया इन द ब्रैकेट। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट कॉलम का नाम होना चाहिए आर नंबर, आपको लग रहा है कि रोल नंबर चाहिए तो भी चलेगा, स्पेस अलाउड नहीं है कॉलम के नाम में। आपको लग रहा है कि यहाँ पे नाम आर नंबर होना चाहिए, डिपेंड ऑन यू, आपको क्या लगता है कि आपका फर्स्ट कॉलम का नाम क्या आना चाहिए। इसके बाद रोल नंबर की वैल्यू इंटीजर में है, इसके लिए हमने इंट डाल दिया। इंट के लिए भी साइज देना कंपलसरी नहीं होता है, दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है। अगर नहीं देना है तो आप डायरेक्टली कॉमा करो, या फिर आपको लग रहा है एक साइज देनी है तो 3 मीन्स मैक्सिमम 999 तक रोल नंबर आप सेव कर सकते हो। कॉमा, कॉमा इंडिकेट्स कि फर्स्ट कॉलम का डेफिनेशन खत्म हो गया है। सेकेंड कॉलम है हमारा नेम, कॉलम का नाम नेम रहेगा, उसका डेटा टाइप मतलब उसमें जो डेटा स्टोर होने वाला है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा टाइप इज varchar। varchar को साइज देना हमेशा जरूरी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी नेम है उसका मैक्सिमम साइज 30 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने वो डाल दिया। कॉमा, मुझे लग रहा है स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लेना है, इसके लिए मैंने DOB कॉलम का नाम डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने डेट। आफ्टर दैट मुझे लग रहा है उसका लाइक CGPA या आपके मार्क्स लेने हैं या SGPA है जो भी लेना है, तो यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया SGPA। अब SGPA जो आता है आपका पॉइंट्स में आता है 5.2, 5.2 या फिर 2.1। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होता है कि आपका साइज जो है CGPA का वो रहता है, सॉरी उसकी वैल्यू रहती है, तो फ्लोटिंग में आ गया। तो फ्लोटिंग के लिए हम इंटीजर के बजाय यहाँ पे लेंगे फ्लोट, और फ्लोट में हमने बता दिया कि टोटल जो वैल्यू है आपका आता है लाइक आई थिंक सो व्हाट इज अ मैक्सिमम 10.0, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू? यस, एनी स्टूडेंट? SGPA का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इंडिकेटर का? 10.0। 10.0, ओके। सो 10 पॉइंट एंड 0 मतलब 3 वैल्यूज हो गए, तो ये मैक्सिमम साइज रहेगा 3। और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आती है? 0.1, 0.2, 0.10 कभी नहीं आता, राइट? 0.1 से लेके 9 तक, राइट? तो इसके लिए पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू रहेगी, इसके लिए मैंने कॉमा करके 1 डाल दिया कि टोटल जो रहेगा SGPA, इसके लिए जो साइज लगेगी मुझे 3 कैरेक्टर्स लगेंगे, और 3 कैरेक्टर में से 1 कैरेक्टर आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट रहने वाला है। सो ये हमने डाल दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, अभी मुझे लग रहा है सिर्फ 4 ही कॉलम लेने हैं, तो 4 ही कॉलम रखे मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया एंड देन सेमीकोलन डाल दिया। ओके, तो जैसे ही आप एक क्वेरी ओके ये लिख के आता है, सो इट इंडिकेट दैट आपका जो टेबल है जो आपको क्रिएट करना था वो कंप्लीट प्रॉपरली हो गया है। अगर इसमें कुछ एरर आता है, एग्जांपल लो अभी सपोज मैं सेम चीज और एक टेबल बनाती हूँ, मैं आप जब अपर एरो की दबाते हो तो पहले की कमांड आप रिपीट कर सकते हो। सपोज मैंने एक स्टूड1 नाम का दूसरा टेबल, अभी मैं क्या कर रही हूँ सेम टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नाम चेंज नहीं किया, सेम टेबल।
और जिसमें मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ 2 कॉलम चाहिए मुझे। अभी ये वाला अगर सेम मैं टेबल का नाम रख रही हूँ तो इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी। मैंने इंटर किया, सो इट इज गिविंग मी द एरर टेबल स्टूड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी स्टूड नाम का टेबल है, तो मैं सेम नाम का टेबल नहीं बना सकती हूँ। ये एरर आया है। तो सपोज मैंने अभी दूसरा यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे डाल दिया सपोज स्टूड 1, और यहाँ पे मेरे से गलती से कोई एक जो लाइक कॉलम रह गया या फिर ब्रैकेट्स रह गया है, कुछ तो रह गया आपसे, और मैंने इसको क्या किया, इंटर किया। तो देखो आपको जो एरर आने वाला है यहाँ पे, सो एरर आएगा, you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MySQL SQL version for the right syntax to use near। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कहाँ पे आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे जब कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके कमांड के एंड में कुछ तो एरर है। सिंगल कोट आया मतलब कुछ उसने दिया, मतलब कमांड के एंड में आपका एरर है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कमांड के एंड में जाके आपका कुछ एरर है, तो आपने डाल दिया। सपोज यहाँ पे जाके मैंने varchar का अगर स्पेलिंग गलत हो गया है मेरे से एंड इंटर किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट में यहाँ पे उन्होंने दिया है सिंटैक्स टू यूज नियर VRCHR। तो ये समझ में आना चाहिए कि सिंगल डैश में जहां से एरर स्टार्ट हुआ है मतलब वहां पे कुछ तो एरर है। जैसे उसने दिया है VR लाइक CHR, यहाँ पे आपका क्या है, कुछ तो एरर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एरर कहाँ पे है, और लाइकवाइज यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन। तो आई होप क्रिएट टेबल कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। क्रिएट टेबल के लिए सिंटैक्स जो है हमारा क्रिएट टेबल, उसके बाद जो नाम आपको देना है टेबल के लिए वो ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम नेम इट्स डेटा टाइप एंड साइज ऑफ दैट कॉलम शुड बी इन अ राउंडेड ब्रैकेट, देन कॉमा, कॉमा के बाद ही आप सेकेंड कॉलम का नाम देना है। कॉमा इंडिकेट कि ये फर्स्ट कॉलम का सब चीजें खत्म हो गई है। सेकेंड कॉलम नेम इट्स डेटा टाइप अगेन इन अ राउंड ब्रैकेट साइज कॉमा। थर्ड कॉलम इफ योर कॉलम डेटा टाइप इज डेट, नो नीड टू गिव द साइज, इसके लिए हमने डेट के बाद कॉमा दे दिया है। फोर्थ कॉलम इट्स डेटा टाइप, अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो आपको साइज में 2 चीजें देनी पड़ती है, फर्स्ट होल साइज कॉमा डेसिमल पॉइंट के बाद आपके कितने वैल्यूज आने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हमने टेबल क्रिएट किया। इसके बाद हम कमांड जो देखेंगे दैट इज शो टेबल्स। तो शो टेबल्स के बाद वो उसने बताया कि कितने टेबल्स क्रिएटेड है अभी। भावना मतलब क्या है, इट्स अ डेटाबेस नेम। इस डेटाबेस के अंदर हमारे अभी खाली कितने टेबल बनाए हैं, 1 टेबल। सो जैसे जैसे आप टेबल क्रिएट करते जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से टेबल्स है जो आपने क्या किए हैं, ऐड किए। तो टेबल की लिस्ट आपको यहाँ से दिखाई देगी यूजिंग शो टेबल्स। दिस इज सेकेंड कमांड। थर्ड कमांड इज डिस्क्राइब कमांड, DESC, या फिर आप पूरा डिस्क्राइब कीवर्ड भी लिख सकते हो, या DESC, डिस्क्राइब एंड नेम ऑफ योर टेबल यू हैव क्रिएटेड। जैसे हमने स्टूड नाम का टेबल क्रिएट किया है तो मैंने डिस्क्राइब एंड स्टूड डाल दिया। तो यहाँ पे आपका जो टेबल है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसने दिया। सो डिस्क्रिप्शन में उसने बताया कि आपने फील्ड इज अ फर्स्ट कॉलम, जिसमें उसने बताया कि फर्स्ट हमने रोल नंबर बनाया, देन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ एंड HGPA। ये आपको क्यों पता होना चाहिए सीक्वेंस की, जब हम इस टेबल में रो इंसर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू मुझे रोल नंबर की डालनी है, सेकंड वैल्यू नेम की, थर्ड वैल्यू डेट ऑफ बर्थ एंड फोर्थ वैल्यू HGPA। तो सीक्वेंस बताता है ये आपका फील्ड के नाम बताता है। सेकंड इज अ टाइप, टाइप में वो बताता है कि उस फील्ड का, उस कॉलम का डेटा टाइप और साइज आपने क्या दिया था जब आपने इसको डिजाइन किया था। तो जैसे रोल नंबर के लिए इंटीजर एंड 3 साइज, देन नेम के लिए varchar एंड 30, DOB के लिए डेट एंड HGPA के लिए फ्लोट एंड दिस साइज। देन थर्ड इज अ नल। नल हम जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं टेबल में। तो नल मतलब आप जब टेबल में कुछ रो इंसर्ट करोगे तो ये फील्ड के लिए वैल्यू आप नल रख सकते हो या नहीं, मतलब ये कंपलसरी फील्ड है या नहीं। जैसे आप काफी बार गूगल फॉर्म भरते हो तो स्टार आता है, स्टार इंडिकेट इट इज अ कंपलसरी फील्ड। तो अभी ये नल हर एक के लिए ऐसे, मतलब कोई भी फील्ड नल रह सकता है। जब हम नॉट नल कंस्ट्रेंट डालते हैं तो वो आपका कंपलसरी फील्ड हो जाता है। की अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है,
हम देखेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, अलग अलग कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे जैसे आप ऐड करोगे वो यहाँ पे आएगा। डिफॉल्ट इज अगेन वन कंस्ट्रेंट, तो अभी तक हमने ये कंस्ट्रेंट किसी पे अप्लाई नहीं किया, इसके लिए सब जगह पे नल आया है। जैसे आप ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आज हमने 3 कमांड देखे, क्रिएट टेबल, शो टेबल, डिस्क्राइब टेबल। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सपोज ड्रॉप टेबल, एंड टेबल का नाम मैंने डाल दिया स्टूड। ओके, जैसे आपने ये कमांड डाली, उसके बाद मैं अगर वापस लिख रही हूँ यहाँ पे शो टेबल्स, तो यहाँ पे एम्प्टी आ गया क्योंकि ड्रॉप करने के बाद वो टेबल रिमूव हो गया। ओके, तो शो टेबल भी नहीं आएगा और ना ही आप डिस्क्राइब टेबल अगर ये कमांड करना चाहोगे। सो इट विल गोइंग टू टेल यू दैट भावना डेटाबेस के अंदर स्टूड नाम का कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। अब इसको मुझे अगर सेव करना है तो अगेन राइट क्लिक फ्रॉम माउस, सिलेक्ट ऑल, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वर्ड के अंदर जाके कंट्रोल वी किया, तो आज हमने जितने भी कमांड किए थे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग वाला रिमूव कर दो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो जो हमने कमांड डाले, जहां जहां पे एरर है उसको आप रिमूव कर दो। तो एरर वाले कमांड्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा मैडम जितने एक है कमांड वो आप डाल सकते हो। मैडम एक मिनट। हाँ, सब स्टूडेंट ने रोल नंबर अंडरस्कोर नेम से चैटिंग में आपका अटेंडेंस दे देना है। यस थैंक यू मैडम। यस। तो आई होप सो सबको आज का